Good morning friends. In the previous lecture we have discussed full adder. Okay. So in this lecture we will discuss subtractor. First we will discuss half subtractor and then we will discuss full subtractor. Okay. So subtractor here, first of all we will make a block diagram. Okay. A and B, we are getting difference and we are getting borrow. This is block diagram, and now we will find out through table input, output, A and B. Output we have difference and borrow. So now 0 0 0 1 1 0 1 1. Okay. So if you subtract B from A, 0 minus 0 you will get difference 0 with borrow 0. 0 minus 1 you will get 1 and with borrow 1. 1 minus 0 1 borrow 0. 1 minus 1 0 with borrow 0. So you can see here, okay. So this is the truth table for this half subtractor, and then we will find out the logical expression for this D. A bar B for this one, okay, for this one A bar B plus A B bar, okay. This is the difference, and the for borrow B is equal to, this is nothing but A XOR B, okay. And the borrow we have single one at the location for 0 1, that is A bar B, okay. You can implement using AND or inverter. This is XOR B, A and B. This is XOR B, this is D, and we have to multiply A bar into B, so we will take one AND gate. So this is here, we will take A bar and B, so this is borrow. So this is the basic gate implementation for this half subtractor. So we can implement this using NAND gate. Okay. So D we have A XOR B. A XOR B we have already discussed using NAND gate. So what we will have? A XOR B, A into AB bar plus B into AB bar. We can write here A into AB bar dot B into AB bar and the whole bar. Okay. So D is equal to this, and also B will be equal to A bar into B, and also you can write this A bar into B, A bar into B double bar. So A bar B, you can write this A bar B, okay. You can add here B into B bar. So now you can take one common B, A bar plus B bar,
and you can write this here. B AB bar, okay, B AB bar, okay, B AB bar, and also write you are here B dot AB bar double bar, okay. Now you can implement. First of all, we will implement this AB bar. A into B, this is A B bar. Now multiply with A. This is A into AB bar bar. Similarly, B into AB bar. B into AB bar whole bar. And again we will multiply this and this. So we will take again NAND gate. So this is D. And here B into AB bar, where AB bar is here, AB bar, and we have to multiply this B. So here we will get this B into AB bar का whole bar. Again we have to multiply NOT gate. So now we will get B into AB bar का double bar, that is nothing but that is equal to borrow. In the previous lecture, last lecture में हमने जो फुल एडर किया था यूजिंग नॉर गेट, जो किया था हमने, उसमें जो सी आउट आपका आया था, ठीक है, जो सी आउट आपका आया था, वो सी आउट को भी आपको, जैसे ये आपका सी आउट आया था, बेसिकली नॉर गेट को यूज करके आपका ये सी आउट आया था, ठीक है। तो इस सी आउट को अगेन आपको नॉट गेट से पास करना होगा, तब वो फाइनल सी आउट आएगा। यहां पे जो मिला वो आउटपुट आपका सी आउट बार है, तो ये सही कर लीजिएगा। आगे उसमें ये चीज और नॉट गेट ऐड कर लीजिएगा, ठीक है, नॉट गेट ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आपको याद हो तो उसका जो सी आउट था वो आपका आई थिंक ए बार प्लस बी बार होल बार प्लस सी इन प्लस ए एक्सॉर बी बार और होल बार, आई थिंक ये था, ठीक है, सी बार ये था। तो जो आपका सी आउट आया था ना यहां, वो सी आउट बार था, उसके बाद आपको इसको नॉट गेट से पास करना होगा, तब फाइनली आपको सी आउट मिलेगा। ये करेक्शन आप कर लीजिएगा। प्रीवियस वाले लेक्चर में फुल एडर में जो नॉर गेट को यूज करके हमने सी आउट आया था वहां पे हमारा, वो एक्चुअली सी आउट बार है, क्योंकि सी आउट बार ये है, वो ये आया था, हमें आंसर ये चाहिए, और जो अभी यहां पे आया था वो ये आया, ये। तो हमें इसको फिर से इसी टर्म में लाने के लिए मुझे नॉट गेट से पास कराना होगा, तब यही रिजल्ट आएगा। तो आप ये उसके आगे नॉट गेट ऐड कर लीजिएगा, ओके। तो ये तो आपका प्रीवियस लेक्चर में जो आपने फुल एडर यूज किया था नॉट गेट यूज करके, उसका एडिशन है, उसको नॉट गेट से पास कराना था, ओके। ये सही कर लीजिएगा, याद आया मुझे यहां से, इस तरीके से, ओके। सो दिस इज द इंप्लीमेंटेशन यूजिंग NAND गेट। नाउ वी विल इंप्लीमेंट दिस हाफ सबट्रैक्टर यूजिंग NOR गेट।
ओके, सो वी विल यूज दिस यूजिंग नॉर गेट. सो नॉर गेट में मैंने बताया था आपको सबको क्या करना है, सम करना है. ओके, सबको सम करना है. तो डी क्या है आपका, डी है आपका ए बार बी प्लस ए बी बार. ए बार बी प्लस ए बी बार. अब क्या करेंगे, ए बार बी बार पहले भी कर चुके हैं हम लोग. ठीक है, ए बार और बी बार ऐड करेंगे तो इसका मतलब हमने कुछ भी इसमें ऐड नहीं किया. ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या लिया, बी बार कॉमन लिया, यहां से ए प्लस बी. और फिर हमने क्या कॉमन लिया, ए बार कॉमन लिया तो ए प्लस बी. ये टर्म आई थी हमारी, पहले भी हम ये कर चुके हैं. ठीक है, पहले भी हम ये कर चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर. तो अब क्या करेंगे, हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, बी बार मैंने डॉट की जगह प्लस लगा दिया, ए प्लस बी बार का बार. मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं. अगर इसे डी बर्नौली थ्योरम इस पर अप्लाई करूंगा तो यही टर्म आ जाएंगे. और इसको मैं लिख सकता हूं ए बार प्लस ए प्लस बी बार और इसका डबल बार, उसका पूरे का बार. ठीक है, मैं इस तरीके से लिख सकता हूं. ये आपका क्या हो गया, डी हो गया. ऐसे ही आपको बी करना है, बोरो करना है. बोरो क्या दे रखा है आपका, बोरो दे रखा है ए बार बी, ए बार बी. सो ए बार बी को हम क्या करेंगे, कैसे लिख सकते हैं, अब हम इसमें क्या करें, ए प्लस ए इंटू ए बार यदि ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ए बार ए प्लस बी. बेसिकली मैं ए प्लस बी वाला कॉन्सेप्ट लेके आ रहा हूं यहाँ. ठीक है, अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, ए बार प्लस ए प्लस बी बार, इसको डबल बार और इसको होल बार. ठीक है, तो ये मिल गया. तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग यही हुआ, ए प्लस बी बार बार. ये ए डबल बार का मीनिंग ये हो गया. ठीक है, अब आप इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं. पहले हम इसको करते हैं इंप्लीमेंट. तो ए प्लस बी का बार, दिस इज ए प्लस बी का बार. ओके, नाउ बी बार, दिस इज बी बार. अब फिर से ऐड करेंगे, बार ले लेंगे तो ये टर्म आ जाएगी आपकी, दिस इज बी बार प्लस ए प्लस बी बार एंड होल बार. ऐसे ही इसको लेंगे तो ए प्लस बी बार ए प्लस बी बार. ठीक है, और प्लस ए प्लस ए. तो ए प्लस बी बार प्लस ए का बार. ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, इन दोनों को सम कर रहे हैं. सम करने के बाद में सम करेंगे, ध्यान रखिएगा सम कर रहे हैं और लेकिन ये बार भी लगा दे रहा है. तो दिस इज, यहां पे जो आ रहा है वो डी बार आ रहा है. ठीक है, यहां पे जो आ रहा है वो डी बार आ रहा है, सम करके डी बार. लेकिन मुझे क्या करना होगा, इसको अगेन नॉट गेट से अप्लाई करेंगे तो मुझे यहां पर डी मिल जाएगा. ठीक है, अगेन मैं नॉट गेट से इसको करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, डी मिल जाएगा.
ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऐसे ही मैंने उसमें नॉट गेट में मैंने वहां पर सी आउट जो आ रहा था वो सी आउट बार था, तो उसका नॉट गेट से बाद पास कराऊंगा तो सी आउट आएगा। ओके, अब आपका ये देख लीजिए बी ए प्लस बी बार, तो ए प्लस बी बार आपका कौन सा है, दिस इज ए प्लस बी बार, सम हो रहा है इसमें ए, तो दिस इज नथिंग बट दिस इज ए, ठीक है, और इसका बार आ गया, तो ये क्या आ गया हमारा, ये आपका बी आ गया। तो इस तरीके से आप नॉर गेट को यूज करके इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आई थिंक आपको ये अब इंप्लीमेंट करना आ गया होगा कि यूनिवर्सल गेट को किस तरीके से हमें यूज करके करना है। यूनिवर्सल गेट को नॉर गेट से करने के लिए सारे टर्म सम में आने चाहिए, और इसको नैंड गेट से यूज करने के लिए सारे टर्म मल्टीप्लाई में आने चाहिए। इस तरीके से आपको वो लॉजिकल एक्सप्रेशन को बनाना है, उसके बाद इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। सो दिस इज द हाफ सबट्रैक्टर। ओके, सो here we are not taking borrow, we are not taking here borrow at the input, but in full subtractor we will use this borrow in this input. Okay, so in full subtractor we will have 3 inputs. Okay, so after this lecture, in the next lecture we will discuss full subtractor. Okay, thank you for watching my video.